order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. My humble request to all the elders in the House is that please help us implement this legislation effectively. And if there are any suggestions for improvement, I'll be taking note of it. I know by now most of the content of the bill is known to you. It has also been extensively reported in the media. Nevertheless, for a quick recall, I may state that this bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country. Paper leak is an issue and a malaise which has confronted this nation and has been reported from different parts of the country, regardless of whichever the party in power, regardless of whichever the state or the union territory. The list is very long, but if you go through, you will understand how assorted it is, hardly leaving any state or any party untouched. Some of the infamous paper leaks extensively reported in the media and talked about include the 2009 Railway Recruitment Board, 2011 All India Engineering Entrance Examination, 2012 AIIMS Delhi Entrance Leak, 2013 Maharashtra Higher Secondary Certificate Leak, 2010 B.Ed Entrance Examination, 2014. Yes, I am coming to that. I am coming to that. Yes. Coming to. I have come up to 26. I am going to come up to 26. Let the minister speak, please. I said I will come up to 2026. UP 2010 B.Ed Entrance Examination, UP 2014 Combined Pre-Medical Examination, UP 2015 Uttar Pradesh Provincial Service Leak, Tamil Nadu 2012 Tamil Nadu Public Service, West Bengal 2009 Joint Entrance Exam, Rajasthan 2018 Police Constable Recruitment Scam, 2019 Rajasthan Librarian Grade 3 Scam, 2020 Rajasthan Junior Engineer, 2021 Rajasthan Eligibility Examination, 2021 SI Recruitment Exam, 2022 RPSC School Lecturer, 2022 Police Constable, 2022 Senior Teacher Grade 2 Examination, same year RPSC Public Service Commission, 2023 Rajasthan REET Exam, 2019 Odisha Teachers Eligibility Test, 2023 Odisha Staff Selection Examination, 2016 Karnataka UC, and very recently Jharkhand Public Service Commission, irregularities in combined service. Now the suggestion is to come to the current, yes. So 2026, current year, Punjab Pharmacy Officer Recruitment Scam. So this is latest. Please. And even more recent, Karnataka Veterinary Officers leakage. Please, I will take care of you, please, my dear. Please. Nothing will go on record except the minister's speech. So I'm glad that I'm glad the enthusiastic response from the opposition is a testimony to the fact that you have acknowledged what I have said. And therefore, you would also acknowledge the justification behind bringing the 2024 bill and the amendment today. Broadly speaking, Chairman sir,
In this country, we have four main recruitment agencies, namely the UPSC, the Staff Selection Commission, the Railway Recruitment Board, and the Institute of Banking Personnel. And for admission to higher educations, now you have National Testing Agency. And my next sentence is again going to excite some of the honorable members on the other side. The irony is that the first time the suggestion for setting up a national agency came way back in 1992, almost 33 years back. It was a Congress government at the center. A series of committees were formed, and in UPA 2 in 2010, again a very strong suggestion from one of the committees set up by them came to set up a national testing agency. I'm sure they will appreciate and be grateful and thank Prime Minister Modi that the unfinished task and unfinished agenda left by UPA is being completed and brought to conclusion by the NDA. And therefore, please take your seat. And therefore, Agarwal ji, in an honest bid, Agarwal ji, please take your seat. Don't get agitated. in an honest bid to carry forward what could have been carried forward by the earlier governments, the Public Examination Bill 2024 was brought in January 24. It was enacted in February 24, implemented in June, and also notified in June 24. The bill's main objectives at that time were to give greater transparency. Honorable member, please Yes. take your seat. Yes, that is precisely the reason you didn't bring the bill. Because Pankaj, you go back to your seat, please. the bill Pankaj, you sought to please bring go back to your greater seat, transparency, greater credibility. And I'm not saying this. There is a strong opinion in this country that this agency was not brought in because there were certain vested interests involved, and which were not compatible with transparency. But here it was a noble thought to reassure the youth that their sincere and genuine efforts would not go unrewarded in the hands of a few vested interests, and to ensure that their future would not be jeopardized by self-seeking Jairam Ramesh, your governments party is of the having day. sufficient time. You can give notes to The your more- speakers and you the can more speak you also. oppose, Please wait. the You more please you take your admit seat. that you had a Pankaj, reason you take of your not seat. bringing it national testing agency running commentary, for please. 53 years. Just as they took 70 years to erase out Article 370, which was their commitment, they took 33 years not to bring in national testing agency. And now that this is being brought, the clamor is not against the bill. The clamor is against that interest which is going to get compromised hereafter. You are the protectors of paper leak mafia. That's Yes, This will not go on record. The running commentaries will not very go on fact. record. Only the minister's speech will go on record. the government's intention is evident from the fact that You the can speak moment everything when you the recent leak was reported. When you are going to speak, when your turn is coming, why you are giving running commentary, please? Minister, please. Yes. No, I don't get disturbed. In fact, I feel complimented. That means it is touching the right chord. सही जगह पे निशाने पे तीर लग रहा है. कि मैं ये स्मरण कराने की कोशिश कर रहा हूं कि 33 साल तक जो ये काम ना कर सके वो आज अंजाम होने जा रहा है. लेकिन मुझे यकीन है इस देश में कुछ ऐसे भी कुछ बुद्धिजीवी थिंकर होंगे जो इसका भी आंकलन करेंगे कि 33 साल वो क्या कारण थे जिस कारण से ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्थापित ना की गई. वो कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो कौन से मैनेजमेंट कोटा थे कॉलेजों के. And as far as the recent case is concerned, immediately it was handed over to the CBI. It is being
followed as per the Prevention of Unfair Means. And day 4 yesterday, the charge sheet was filed. And I'm glad to share that from yesterday, the trial has begun. As per this new law, the investigation will be complete in 2 months, followed by trial in 3 months, 5 mahine. We did not allow indefinitely running trials, which was happening in the earlier governments. अगर कहीं मजबूरी में कोई केस दायर करना भी पड़ता तो it was more of an exit route or face saving, with the firm belief that you will never come to the conclusion. मैं उसका भी बताऊंगा, but I'll speak elaborately during reply. What he is saying is, I thought Jairam ji is a very well-read person, but possibly he has not read the news report in full. Mukhia was never implicated in 2026 case. A, he was also not implicated in 2024 leak. While rounding up, मैं आपने पढ़ी नहीं खबर. While rounding up, since he was a known scamster in Bihar for paper leak, so when they were rounding up the suspects, he was also taken in. But per se in this case, he was not involved. And that is the report. I thought you read more than me, but today I am glad that I read more than Jairam ji. Anyway, so sir, without wasting time, then because we have to go in for discussion, a number of speakers, and finally we'll also have the concluding remarks. Just to spell out briefly in 5 minutes these important provisions that are being brought in, just the recall of the fellow speakers as well. In the earlier bill of 2024, we had the subsection 1 of section 10, where a person or persons involved were subject to 3 to 5 years of imprisonment and a fine up to 10 lakh. This has been increased to imprisonment of 5 to 10 years and a fine up to 50 lakh. As far as the service provider is concerned, now if Jairam ji has not read that, I will read out. What is the definition of service provider? नहीं, क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा. सर्विस प्रोवाइडर मीन्स any agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship, any sub-associates, any subcontractors, any provider of support, of any computer resource or any material, by whatever name it may be called, which is engaged by the Public Examination Authority for the conduct of public examination. So this was a definition given in 24 itself, but just to recall. Now, in 24, the penalty laid down was fine up to ₹1 crore and barring them from conducting an exam for 4 years. This fine is now being increased to 5 years, and the concerned would not be allowed to conduct an exam instead of 4 years for as long as 8 years. Subsection 3 of section 10, director or senior management in connivance. Imprisonment earlier was 3 to 10 years in 24, now it is being increased to 5 to 10 years. Fine was up to 1 crore, it is now being increased to 5 crore. And organized crime, the mafias, which sometimes prompt us to oppose the bill. Mafia is a larger nexus. It could involve persons from the business community, persons from the crime world, and persons from public life also sometimes, unfortunately. And the echo buzzes all around. And for this organized crime committers, the imprisonment earlier was 5 to 10 years. It is being increased to 7 to 10 years. And fine was earlier not less than 1 crore. It is now being increased to 10 crore. And most importantly, there is a provision of special fast-track court, so that the powers that be do not find an exit in filing a case, sleeping over it, and allowing the same malice to continue as was happening before 2014. The special task force, this is a new provision involved, and therefore, in the Act, we are adding section 12A, a new section. The investigation could be conducted by a police officer, could be conducted by a central agency, if the government chooses to refer as has been done in the current case.
and also by a special task force, namely the STF. And the investigation will have to be completed within a period of 2 months, followed by trial within a period of 3 months, so that the special fast track court will be able to exclusively deal with this. The special prosecutors will be nominated or appointed in consultation with the concerned High Court, and on justifiable grounds alone, the appeal provision is laid down, not in normal cases, that too to the double bench of the High Court. And beyond 30 days, unless the High Court is satisfied, it would not be possible to file an appeal, and in no case beyond 90 days. Now, may I also add over here that in the course of these few days when the bill was in process, it was being put up in Lok Sabha, it was being taken up in the discussion, the action has simultaneously started. We requested the Ministry of Law, and I'm glad the Department of Justice has already set up 6 special fast track courts in this country. More are in the making. One of them is Delhi, where the trial has started yesterday in the current case. The other one is Mumbai, then in Calcutta or Kolkata, 4th for Madhya Pradesh, Bihar, Uttarakhand, and more are incoming. And as you all know, Prime Minister made this announcement and also said this in a video. हर जगह होगा, हर जगह होगा. ये तो अभी हमने तुरंत ये इसलिए किया कि दिल्ली का केस था तो इस 6 जगह हो गया. A task force has been appointed with Nandan Nilekani, the co-founder of Infosys, S. Somanath, former chairman ISRO, Tapan Dekka, ex-DIP, Dr. V. Kamakoti, Director IIT Madras, Chennai, Anita Karwal, former Secretary Education, and Amrita Lal Meena, logistics expert. And repeatedly it was said that immediately for going into the vision provisions of the National Testing Agency, I don't know how this misconception has been sought to be created, that the Radhakrishnan Committee, which was set up in 2024, the recommendations have not been implemented. I would like to share with this August House that out of the 46 key recommendations, 35 already stand implemented, that is more than 76%. And therefore, the government is in right earnest with all the sincerity at its command, bringing in this amendment, and I'm sure no member will have any reason to object to this, and if you have an objection, I'm afraid the countrymen will be having objections for you. Now the motion is moved. Honorable members, I draw your kind attention to the rules 235 and 238 of the rules of procedures. Honorable members are requested to adhere to the said rules while being present in the chamber or during their speeches. Further, those portions of the speeches made in contravention of the rules shall not be form the part of the records. And I request all the members on both sides, there are elegant, very good and efficient speakers. Let them speak. Please don't make a running commentary. If your prime speaker is missing any point, you can make a note and send it to him, and so that we will have a very fruitful discussion. That is my humble request to all of you. Now, Sir, one point. Sir, one point, sir. yes. Sir, the leader of the House and the leader of the opposition are institutional positions. Right. Time is allocated to them in terms of the positions they occupy. So I request that the leader of the opposition be given special time and not be factored in as part of the time for the Indian National Congress. Okay. No, please. Let him speak. Let him speak. If he really requires extra time, we will consider it. It is an established system that whether it's the leader of the House or leader of the opposition, when they speak on behalf of the party, the time is allocated, it is counted in the time allotted to the party. However, looking at the position, being the leader of the House and leader of opposition, they always enjoy some privileges, and I have seen
The Honorable Chair has always given that courtesy. But what I want to say is opposition leader represents entire opposition party. And leader of the house represents entire house. And that part we will always ensure from our side. And only when there is some kind of remarks which is objectionable, then only our members rise and object. Otherwise, leader of opposition is always given due respect. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Leader of the opposition, Shriman Mallikarjun Kharge ji. Please take your seat. Please take your seat. Nothing will go on record except Kharge ji's speech. Don't get agitated. Let us hear the points of the speakers. Please listen. धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने सविस्तर से सुनने का भी बात यहाँ पर रखी, इसीलिए मैं अपने बात को ठीक ढंग से रखूँगा और मैं यही चाहता हूँ कि सरकार के लोग ठीक से सुने और इसका उत्तर वो ठीक से दे, यही मेरी अपेक्षा है और आप मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, ये मेरी आशा है। सर, मैं शुरू करता हूँ मैं शुरू करता हूँ, पेपर चुराने वाले बचते रहे, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे, ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत, गुनाहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। यानी मासूम लोग आज मासूम, तो ठीक है, आपका हिंदी बहुत अच्छा होगा, आपका हिंदुस्तानी भी अच्छा होगा, मेरा भी थोड़ा हिंदुस्तानी सुनिए। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पेपर लीक होने से कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ और कितने लोग पीटे गए, कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने औरतें बच्चे परेशान हैं, इसको जाहिर करने के लिए ये बात मैंने आपके सामने रखी। सभापति जी, आप अभी पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 में जो जहाँ चर्चा के लिए आई है, उसमें सिर्फ आंकड़े बदले हैं। मेरे पास पूरा ये है बिल, तो उन्होंने पढ़ा, वो बिल मेरे पास भी है, इसमें सिर्फ आंकड़े बदलते गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इससे पड़ेगा आप किस ढंग से इस एग्जामिनेशन को लेके चलेंगे और विदाउट पेपर लीक आप कैसा बनाएंगे, वो उस पे ऊपर निर्भर करता है। नहीं कि इसको हमने बढ़ाया 1 करोड़ से 10 करोड़ किया या 2 महीने से 6 महीने किया, इससे सुधारने वाला नहीं है।
तो इसलिए मेरा कहना ये है कि ये तो नई बात तो नहीं है, लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना और उधर से अभी अपने भाषण में कहा कि आप लोगों ने नहीं माना। लेकिन इस मजबूत कानून को ठीक करने के लिए हम बार बार आपके सामने कहते रहे, लेकिन आप किए नहीं। लेकिन 2 साल के बाद आप जो काम कर रहे हैं उसे 2024 में ही क्यों नहीं किया? तो अब कर रहे हैं 2024 में, यानी 2 साल पहले आप क्यों नहीं किए? क्योंकि तब आपको राजनीति करनी थी, लोकसभा चुनाव सामने थे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार पेपर लीक और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठा रहे थे। आप ये करते तो क्रेडिट नहीं मिलता था उस वक्त, इसीलिए आप उसको छोड़ दिए। तो उस समय परीक्षा व्यवस्था को सुधारने की बजाय आप जल्दबाजी में ऐसा कानून लाए, जिसे 2 साल में ही आपको संशोधित करना पड़ रहा है। सभापति जी, इस अमेंडमेंट बिल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये अभी भी अधूरा है। ये पेपर लीक होने के बाद भी इसकी कार्रवाई को मजबूत करना ये जरूरी है। पेपर लीक होने से रोकने की मजबूत व्यवस्था इसमें नहीं है। सिर्फ आपने आंकड़े बदले, लेकिन आपका इंटेंशन आपने इसमें नहीं बताया, इसको कैसा रोकना। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये सब जो माहौल आज चल रहा है, इस माहौल को ठंडा करने के लिए और जो आज हमारे विद्यार्थी युवा जो सड़क पे आए हैं, उनको ठंडा करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये है सो समस्या को सुलझाने के लिए नहीं। सभापति जी, पिछले 2 महीने की घटनाओं ने देश को झकझोर दिया है। देश भर के छात्रों और नौजवानों ने परीक्षा व्यवस्था की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई। विपक्ष ने उनकी आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठाई। बढ़ते जनदबाव के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े। मैं देश के छात्रों, नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं। उनका संघर्ष रंग लाया और सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री को, प्रधान को हटाना पड़ा। और इसीलिए ये युवाओं की ताकत है। और जब युवाओं की ताकत देखने के बाद हमारे सरकार को भी ये मालूम हुआ, अरे इससे ज्यादा अगर हम कुछ खींचतान करेंगे तो धागा टूट जाएगा और हमारी कुर्सी चले जाएगी। इसीलिए डर के आखिरी में उन्होंने युवाओं का जो डिमांड था उसको माना, लेकिन उसमें यह है, उसके पीछे है कि उनकी कुर्सी बचाने के लिए भी ये काम उन्होंने की, ना कि विद्यार्थियों के समस्याओं को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए नहीं की। कुर्सी कैसा बचाना, और इतना एजिटेशन हो रहे हैं सब कुछ। और हमारे जितेंद्र सिंह साहब भी इसको सुलझाने के लिए सड़क पर आना पड़ा। उनको भी कहना पड़ा कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं, वो ये, क्योंकि उनको
कैबिनेट मंत्री बैठे बैठे रनिंग कमेटी कर रहे हैं। मेरे पास भी झुक के एक दिन आएंगे, वो वक्त भी होगा तक। तो सर, प्रधानमंत्री जी, गिरिराज जी प्लीज। सर, तो वो समझाने की भी कोशिश करे, आए सब बोले, लेकिन डर इसका था उनको, वो जो सत्याग्रह या वो जो एजिटेशन था राहुल जी ने उस दिन किया, वो एकदम डर गए और डर के बोले कि ये ठीक, इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। तब उन्होंने ये तय किया कि प्रधान को हटाया जाए, शिक्षा मंत्री को हटाया। तब ये एक उनका अंदरूनी विचार है, और आप किसी से भी पूछिए, वो दिल में उनके है लेकिन बाहर नहीं बोलते, क्योंकि मोदी जी अपने कुर्सी के लिए ये सब कुछ किए। ये कदम तभी उठाया जब छात्र पेपर लीक, परीक्षा की गड़बड़ियों और संस्थागत नाकामियों की बात कर रहे थे। तब सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनको अराजक कहा और हर सवाल को राजनीति से जुड़ा बताकर खारिज कर दिया था। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं साहब, जब विद्यार्थी पहले ये पूछे, महीनों से वो लोग वहाँ सड़कों पे बैठे और महीनों से एजिटेशन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त आप क्यों नहीं पूछे? उस वक्त उनके पास क्यों नहीं गए? उनके पास क्यों आप निगोशिएट नहीं करे? बाद में बुला के नड्डा साहब अपने चेंबर में बुला के समझाने के बजाय जिस दिन वो वहां बैठे थे उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अगर आप जाते तो ये समस्या नहीं होती, इतने लोग लाठी नहीं खाते थे, इतने लोग बर्बाद नहीं होते थे, इतने लोग बारिश में नहीं रहते थे। तो ये आपकी वजह से, आपके सरकार की वजह से ये सब भुगतना पड़ा। उसके कारण बीजेपी सरकार है, मोदी जी है, सबसे बड़े हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, जो दिख रहे ही नहीं हूं। मैं देख रहा हूं, नहीं तो बाकी के छोटे छोटे इश्यू में आके बार बार अपनी बात रखते हैं, हर तरफ घूमते हैं। तो किस तरफ क्यों नहीं घूम रहे मुझे मालूम नहीं। डरे हुए हाँ, डरे हुए तो ये प्रधानमंत्री भी मुंह नहीं खोल रहे और हमारे होम मिनिस्टर भी नहीं हो रहे, क्योंकि यहां पर दिल्ली में ही इतनी गड़बड़ हो रही है और आप होम मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, इतना होने के बावजूद भी, गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? बोलना चाहिए था खुलकर। देश का नुकसान होने के बजाय देश के भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, कभी इंसल्ट भी सहन करना पड़ता है। आप करना पड़ता नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो जो सबक स्टूडेंट्स ने तुमको सिखाया है उससे डबल सारे विद्यार्थी और युवक मिलके एक दिन फिर आपको वो सबक सिखाएंगे। सर, 20 जुलाई 2026 को हजारों छात्र शांतिपूर्वक संसद की ओर मार्च कर रहे थे। वे संवाद चाहते थे, लेकिन उन्हें मिला लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन्स, पैलेट गन, करंट वाले बैरिकेड, मेट्रो लाठी में कीले रखकर और रेलवे स्टेशन भी बंद करे और मेट्रोस बंद करे और इंटरनेट बंद करे। ये सब ठप हो गया। ये सब आपने किया और इससे विद्यार्थी उचक गए, नागरिक भी बहुत इसमें गुस्से में रहे।
तो इसीलिए उनको ये एजिटेशन करना पड़ा, लेकिन आप संभाल नहीं सके, शांति से उनसे बात नहीं कर सके। 100 से अधिक छात्र इस एजिटेशन में जो थे वो घायल हो गए और आईसीयू में वेंटिलेटर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पड़े बहुत से, और कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया क्या नहीं मुझे मालूम नहीं। जो मुझे शर्म आया, अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके देश में क्या है। Now I call upon the leader of the House. All of you take your seat. All of you take your seat. All of you take your seat. Now I call upon the leader of the House. सभापति जी, एक मिनट, सभापति जी, एक मिनट। When he speaks, no. सभापति जी, I call. When he is speaking, if he wants, I will call him. When the leader of the House is speaking, if the leader of the opposition wants to intervene, I will call the leader of the opposition. सभापति जी, Yes. सभापति जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में न आए। वो मैं नहीं बोल सकता, वो मैं नहीं बोल सकता। Any unparliamentary by either side that will be expunged. No, don't insist on it. Please try to be within the framework so that the smooth, wonderful debate should take place. सर, मैं कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जन, लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग। मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूँ नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला। मेरा कहना ये है कि ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। अब हमेशा हर चीज का हमारे पास हमदर्द बोल के कोई औषध था, तेज नहीं, जिंदा तिलिस्मात। हर बीमारी को जिंदा तिलिस्मात, फीवर आने दो जिंदा तिलिस्मात, और कोई को बुखार आ गया वो जिंदा तिलिस्मात, अच्छा खांसी आ गई जिंदा तिलिस्मात, उसका नाम ही जिंदा तिलिस्मात। हर कौन सी बीमारी आने दो, लोग हैदराबाद में वो जिंदा तिलिस्मात ही देते थे सब। तो वैसा इनके पास कोई नहीं। हमेशा जो अपने पोर्टफोलियो के विषय रहते हैं, ठीक है,
एक आधा बार हमारे स्टेट मिनिस्टर्स उनके तरफ से बोलेंगे, कोई बहुत ही अर्जेंट काम है, ठीक है वो बोलेंगे, लेकिन हमेशा सारी बात नड्डा साहब को लगा देते हैं। वो नड्डा साहब हर चीज का वो निभाते हैं। और उसके बाद अब जितेंद्र सिंह आए, हर चीज को उनको आगे करते हैं। और ये सब क्या है, ये सब जिंदा तिलिस्मात का काम कर रहे हैं। छोड़ो सर, 20 जुलाई की घटना के तुरंत बाद सरकार को देश के सामने पूरी सच्चाई रखनी चाहिए थी, लेकिन हैरानी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आज तक मैंने कहा पीएम या एचएम अपनी बात नहीं रखे, इसके बारे में रिग्रेट भी नहीं करे। रात के 12 बजे, रात के 10 बजे इंस्टाग्राम उसमें ऐसा लेके बात कर रहे हैं, और क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे। अरे आपको तो मन की बात बोलने की आदत है, आपको तो हर बात में इंटरफियर करने की आदत है, आपको तो पिछले सरकार को 100 बार गालियां देने की आदत है। कम से कम बच्चों को एड्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिला, रात के 12 बजे मिला। और दूसरे बात, धन्यवाद वो भी रात के 12 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये नए शब्द उन्होंने प्रयोग किए, नहीं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे, सर अरे कोई पार्लियामेंट्री नहीं है मेरा, क्यों दिखा रहे तुम? कुछ नहीं उसमें। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं, लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया, आंसू गैस का दिया, और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया? न आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। नहीं होता साहब, अगर आदमी झूठ बोलता है तो एक बार उसका बाहर निकलना पड़ेगा बंटवाल। तो इसीलिए आपके लोग आए, सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा, मुझे मालूम नहीं। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहाँ आकर, वो सदन में आकर ही देना, मैं बाहर पूछ रहा हूँ थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये उसके जिम्मेदार है। जो चीजें मैं आपके सामने रखा, अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और दूसरे बर्खास्त करना चाहिए। यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश,
आसाम में छात्रों पर हुई बर्बरता पर भी केंद्र सरकार चुप क्यों है? बिहार में, बंगाल में, बिहार में AK-47 का इस्तेमाल जिस पर हुआ तो आतंकवादी नहीं, छात्र था। छात्रों पर दमन हुआ, उनको जेल भेजा गया, FIR हुआ, पर किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। क्या सरकार को बच्चों पर हुई इस बर्बरता को लेकर जरा भी पछतावा नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है? और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो काम हुआ, जिस तरह शिक्षा मंत्री जी इस्तीफे के बाद संसद के परिसर में बहुत पहुंचे, तो सत्ता पक्ष ने उनका जैसा स्वागत किया कि कारगिल युद्ध में जीत के आए जैसा उनकी स्वागत। हाँ? और उससे ये संदेश क्या है कि आप नाकामियों का भी उत्सव मनाते हो। आप नहीं मानते, नड्डा साहब दिल से आप नहीं मानते, क्या मानते हैं? इस सदन के मुख्य तौर पर जो मंत्री राजीनामा दिया, जिसके खिलाफ ये सब चार्जेस थे, क्या वो ऐसा अपना क्या बोलते हो, हाँ, वो सब मुकुट पहन के, शाल डाल लेके हंसते हुए, अरे तुम तो नाराजगी व्यक्त करना क्योंकि मैंने ऐसी गलती की, बच्चों को मारने पीटने लगा, तो इसलिए ये ऐसी हालत मेरी हो गई। ये पश्चाताप करने के बजाय आपने जो ये अपना जलसा मना रहे। और दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है। जब जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा समय तक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, तब सरकार ने संवाद का रास्ता क्यों नहीं चुना? एक मंत्री के इस्तीफे के शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल दी, यानी एक मंत्री को इस्तीफा देता है, उससे पूरे व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था बदलती, ऐसा मैं तो नहीं मानता। क्योंकि वो एक कारण है। लेकिन इसको अगर आपकी सिस्टम वही रहेगी, आपका प्रयास वही रहेगा, तो निश्चित रूप से आप इसको सुधार नहीं सकेंगे। अब मंत्री तो गए, वो बात और है, लेकिन इसको सुधारने की कोशिश आप अभी भी नहीं कर रहे। सर, उल्टा हमेशा उनकी आदत है, हम जो बोलते हैं उसका उल्टा करना। अगर इंस्टीट्यूशंस वही रहेंगे, NTA वैसी ही रहेगी, एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं बदलेगा और जवाबदेही तय नहीं होगी, तो कुछ महीनों के बाद फिर कोई नया पेपर लीक होगा और हम फिर इसी सदन में यही बहस हम लोग करते रहेंगे। क्योंकि पेपर लीक के बारे में आपने जो बिल रखा वो एक तरफ है, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या करें वो इम्पोर्टेंट था। लेकिन आप सिर्फ लोगों को आपको रोकना। सर, सभापति जी, सरकार की नाकामी के सबसे ताजा मिसाल नीट UG 2026 है, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र बैठे थे। पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी और बाद में पता चला कि परीक्षा से लगभग 15 दिन पहले बाजार में पेपर गुम रहा था। जांच में पता चला कि शिक्षा तंत्र में घुसा एक संगठित नेटवर्क नासिक, सीकर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, केरला और उत्तराखंड तक ये फैला हुआ था। गिरोह खुलेआम काम कर रहा था, पर सरकार सोई हुई थी। क्या आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है? क्या आपके पास IB नहीं है?
क्या हर स्टेट, आपके हर जगह तो डबल इंजन है, सरकार है, डबल इंजन सरकार, क्या वो लोग इंफॉर्मेशन नहीं देते? क्या आप कलेक्ट नहीं करते? तो समय नहीं है सर, है सब व्यवस्था उनके पास, लेकिन समय नहीं, इसको सुलझाने के लिए समय नहीं, उसीलिए वो ऐसा हुआ। मैं पूछता हूं कि आपकी केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। सभापति जी, ये कोई पहली नाकामी नहीं है। 2015 से लेकर 16, 21, 24 और 2026 तक नीट बार बार पेपर लीक और गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों से घिरता रहा। हर बार मोदी की गारंटी फेल होते गई। हमेशा बोलते रहे मैं देख लूंगा, इस बार नहीं होने दूंगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कहां है कड़ी से कड़ी सजा? तो कड़ी तो टूट गई, लेकिन सजा किसको भी मिलेगी? सर, आज सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की बातें करती है, लेकिन उसका अपना रिकॉर्ड क्या है? 2024 नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी को क्लीन चिट मिल गई है, जिनका नाम अभी हमारे जयराम रमेश जी ने लिया, मुखिया लिया। तो क्या किया साहब? उसको नाम मालूम है, जो आदमी किया वो भी मालूम है, डालना उसको। पार्टी भी मालूम है। हाँ, पहले तो बोलते थे छोटी मोटी चीज को अगर डी नोटिफिकेशन, क्या है वो, डिमोनेटाइजेशन में अगर मैं विफल हो जाऊंगा तो 15 दिन के अंदर मैं नहीं करूंगा, मैं चौराहे पे अपने आप को लटका देना, मेरे को फांसी डाल। ये उन्होंने कहा, मैं मजाक से नहीं कर रहा हूं, आप ही की बात है। लगाओ ना इसको, जो आदमी किया आपको मिला है, आपके हाथ में है, जो आपको उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, जो मिलता है उसको छोड़ रहे हैं, और आपका अचीवमेंट 0 है, किसी को शिक्षा अब तक नहीं हुई। तो सर, 2026 मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई समय पर पेश तक नहीं हुई, और पिछले दशक में केंद्र और राज्य की कम से कम 152 परीक्षाएं पेपर लीक के शिकार हो गए। और खड़गे जी, आज तक how much minutes more you want? लीक के मामलों में सर, How many more minutes you want?